So next program, we'll do next program. Read this program. We have finished with the occurrence of first occurrence of a given number. Now same related program. A block of data is stored in memory location starting from C040. Length of the block is stored in register B. Write a program to find the number of times. Hmm? In earlier program, what was the program? What was the program? You need to find out the first occurrence. Here, what you are doing, you are finding how many times that data, find the number of times the data ABH occurred from the given block of data and store the result at the end of the block. So your output location is C045. Okay. And in previous program, what was the storage? Stored location was not given and your data was in HL register pair. But here it is given that the count, how many times your data ABH is present in the block that you have to store at the end of the block. So how many times it is present? If you see this, so it is present 2 times. तो योर रिजल्ट शुड बी 0 2. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक रजिस्टर भी और लेना पड़ेगा इसमें. लेट्स से सी, बिकॉज वेन एवर यू आर काउंटिंग, ठीक है ना, कि ये जैसे ये फर्स्ट टाइम आया तो हाउ यू विल कीप द रिकॉर्ड. तो यू हैव टू टेक वन रजिस्टर whose initial value is 0 0, and what you have to do, कि whenever you compare the data and if it is matched with the memory location, then you increment that content. तो जब फर्स्ट टाइम आपको मिल गया तो इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. ठीक है, जब वो सेकेंड टाइम मिलेगा अगेन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. और फाइनल रिजल्ट फिर आपका किस में आएगा? सी इज योर फाइनल रिजल्ट दैट यू हैव टू स्टोर इन दिस लोकेशन, आउटपुट लोकेशन C045. गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या क्या चेंज आया इसमें? एक तो आउटपुट लोकेशन हमारा आया C045 इज माई आउटपुट लोकेशन, जहाँ पे आपको काउंट देना है, फाइनल काउंट इधर आएगा. उसके बाद एक्यूमुलेटर में तो यू विल कीप योर डेटा ABH फर्स्ट डेटा इसमें ही रखोगे, सो दैट यू कैन कंपेयर विद memory location, and memory location is pointed by HL register pair, right? उसके बाद now you will compare these two. सेम, इतना तो सेम ही है प्रोग्राम. कंपेयर एम, कंपेयर एम करने के बाद हमने यूज किया था वहां पर JZ. ठीक है, नाउ यू विल हैव टू यूज इंस्टेंट ऑफ JZ, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो आपने वहाँ पे क्या किया था, स्टॉप द प्रोग्राम. बट यहाँ पे क्या है कि इफ इट इज ज़ीरो मीन्स इफ इट इज matched with the memory content, then you have to increment the content of register C, which I have taken C initialized to 0. Okay, this is my to store the final result. If it will match, then it will increment it by 1. And if it is not match, then what you have to do? You have to go to next location. So instead of JZ, here we are taking J and Z. Jump if not 0. अगर 0 नहीं है इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं हुए, तो क्या करो, इंक्रीमेंट द HL, डिक्रीमेंट द काउंटर, check the counter. If counter is not 0, go up. कुछ कंडीशन जो लूप के हैं वो तो सेम ही है इंस्ट्रक्शन. क्लियर? अभी आप देखो फिर से इसमें प्रोग्राम में, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज हो रही है? इट इज पॉइंटिंग माय फर्स्ट मेमोरी लोकेशन. ओके, सेकेंड इंस्ट्रक्शन किस लिए है? जो भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं दैट वी आर स्टोरिंग इन accumulator, right? Then what is the meaning of third instruction? It is basically used to set the counter. Now what is the meaning of next instruction? That here C I am taking to store my final result, to keep the track of the
to keep the track that how many times it is there in your block. The given or the search number is there in your block. After that, now first number is pointed by HL and the search item is in accumulator. Now you can compare. How you will compare? With the help of CMPM. You are comparing with this. Now you are using J and Z. ठीक है, ये अब आपको सोच के करना है. जे जेड लेना है, जैसे लास्ट प्रोग्राम में जे जेड लिया था. क्यों? कि अगर ज़ीरो मैच हो जाए तो इमीडिएटली स्टॉप योर प्रोग्राम. बट अभी स्टॉप नहीं करना. अगर मैच हो गया तो आपको उसे काउंट करना है, और अगर नहीं मैच हुआ तो नेक्स्ट पे जाना है. तो हेयर इट इज सुटेबल और गुड इफ वी विल टेक जंप इफ नॉट ज़ीरो. कि अगर ज़ीरो नहीं है तो मीन्स नेक्स्ट पे जाना है. तो नेक्स्ट पे जाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ आ जाओगे, INXH increment to go next location, decrement the counter. Now counter is 4 and if it is not 0, go up. Again you compare with the second location. सेकेंड लोकेशन के साथ भी वही होगा, इसमें कंपेयर नहीं होगा, ज़ीरो नहीं आएगा. फिर से आप इधर आ जाओगे, INXH डिक्रीमेंट सी जंप इफ नॉट ज़ीरो. नाउ दिस विल कंपेयर विद ABH. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स. और अगर ये फॉल्स होगी तो क्या करना है? मीन्स फॉल्स का क्या मतलब कि Z1 है, Z0 था तो हम जंप कर रहे थे, ट्रू पे जंप करना, इसलिए जंप इफ नॉट ज़ीरो. जब ज़ीरो फ्लैग 1 नहीं है तो जंप कर दो. बट अगर 1 है तो मतलब ये मैच हो गया. ए बी इज मैचिंग विद the content of accumulator. So what you have to do, you have just count that one time it is there, one time it is matched. ओके. इसी तरह से जब वो लास्ट में भी यहाँ आएगा तो सी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी. तो ये कंडीशन 2 बार फॉल्स होगी, C042 पे और C044 पे. ठीक है. तो अभी लास्ट में क्या करना है? यू नीड टू स्टोर द प्रोग्राम रिजल्ट ऑफ योर प्रोग्राम. तो वो किस में है? सी में है. तो हमें कहाँ जाना है? वेयर इज योर रिजल्ट? रिजल्ट विल बी एट नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, दैट इज C045, जो ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है कौन? ऑलरेडी यहाँ पे INX हो चुका है लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि काउंटर 0 0 होने से पहले INXH इंक्रीमेंट हो जाता है. तो ये इंक्रीमेंट होके C045 पे आ गया है. ओके. सो नो नीड टू डू इट INX अगेन. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फिर से INX लिख देते हैं. It moves to next consecutive location. No, it is already done. So no need to write this. You just come out from the loop and then store final result, which is where it is there in register C to memory location. तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट C का मूव होके C045 पे ट्रांसफर हो जाएगा. एंड देन स्टॉप योर प्रोग्राम. Understood? So this is how many times one number is there in your block. तो यहाँ पे number of times the occurrence of data ABH you need to find. क्लियर है? ये दोनों प्रोग्राम लास्ट सेशन में करवाया था. फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ नंबर, एक ही बार ढूंढना है नंबर. जैसे ही मिलेगा यू जस्ट गो टू द लास्ट लोकेशन. तो देयर वी टुक JZ. ठीक है, JZ लिया था कि 0 हो जाओ तो लास्ट में चले जाना. अंडरस्टैंड? और अगर नहीं है तो क्या करना है? यू हैव टू गो टू, ये पार्ट नहीं था, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था. बट इन दिस केस यू हैव टू काउंट. तो इसलिए JNZ लिया है कि अगर 0 नहीं है तो आप नेक्स्ट पे जाओ, फिर से कंपेयर करो. और अगर कंपेयर मैच हो जाता है तो यू टेक वन रजिस्टर whose initial value is 0. So whenever it is matching with memory, then you increment register C to show or to store final result, and that final count then you store in memory location, the next consecutive memory location of this block. Clear है? Is it clear now everyone?
ये सारे प्रोग्राम्स आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करने हैं. आई हैव गिवन द लिंक फॉर दैट किट ऑल्सो. So I'm not executing all the programs. Now it is your time to execute and practice all these programs on the kit. Okay, we have done already 7 to 8 programs on the kit. तो घर पे practice आपको करना है. Okay, we'll do next program. Now this program is very interesting. ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है. और इवन फाइंड आउट करना, ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं, these all are very important program. All are your board questions. थ्योरी पे के क्वेश्चंस हैं ये सब, थ्योरी बोर्ड पेपर्स के. ओके, नाउ रीड दैट प्रोग्राम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम? A block of data is stored in memory location starting from C040. Okay, तो हम सेम लोकेशन ही ले रहे हैं. यू इट इज़ नॉट नेसेसरी बोर्ड में यही लोकेशन है, कहीं एनी लोकेशन दे कैन गिव. तो डोंट बॉदर अबाउट द लोकेशन, बट इनिशियलाइज करते टाइम जो भी लोकेशन है देयर हेयर यू हैव टू गिव दैट लोकेशन. ब्लॉक लेंथ कहाँ दिया है, कैसे दिया है, that all may differ, but the concept, the logic behind is same. So a block of data is stored in memory location starting from C040. Length of the block is stored in register B. Write a program to find total number of odd numbers from the given block of data and store it at the end of the block. तो अभी आपको क्या करना है? You need to find the odd numbers from that block. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड इवन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑड इवन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाइनरी में, बिकॉज कंप्यूटर इज टेकिंग एवरी हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. So as we have already done in 11th standard that the last LSB means the least significant digit, जैसे 0 1 है, so if you convert into hexadecimal, so this is 0 0 0 and this will be 0 0 0 1. Okay, and 0 2 को convert करोगे तो this will be 0 0 0 0 and this will be 0 0 1 0, right? So if you can see this one and this one, LSB, this is your least significant bit. तो आपको ऑड इवन कैसे फाइंड आउट होगा? अगर ये लोकेशन जो है 1 है तो दिस इज ऑड नंबर, right? And if this location is even 0, then this is even number. LSB अगर 1 है तो ऑड होता है, और अगर LSB 0 है तो वो क्या नंबर हो जाता है? इवन नंबर है. तो वही कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम में आपको यूज़ करना है. तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा इसका लॉजिक है. वी विल यूज़ रोटेट इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले आपने मेमोरी को पॉइंट किया HL से, ठीक है, इससे पॉइंट करना है. फिर काउंटर जो है, इसको बी रजिस्टर को काउंटर बना लिया. नाउ यू ट्रांसफर एवरी नंबर फर्स्ट इन एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर किया, फिर उसको क्या किया आपने? रोटेट करना है राइट के थ्रू. रोटेट राइट, RRC इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? इट विल रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टुवर्ड्स राइट बाय 1 बिट. तो अगर आपका कंटेंट एक्यूमुलेटर में ये 0 1 ही है तो ये क्या होगा? ये रोटेट हो जाएगा. दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 0 0 एंड लास्ट नंबर इज 1. तो RRC है तो ये रोटेट होके किधर जाएगा? इधर ट्रांसफर होगा. और साथ साथ किधर जाता है? कैरी में जाता है ना. This is the meaning of this instruction, that first your data should be in accumulator because this is implicit instruction.
सो इम्प्लिसिट में कंटेंट जो होते हैं वो एक्यूमुलेटर में होने चाहिए. एंड आफ्टर दैट ट्रांसफर दिस व्हेन यू पुट RRC, तो इट विल रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टुवर्ड्स राइट बाय 1 बिट. तो ये राइट में रोटेट होगा तो LSB कहाँ जाएगा? LSB will become MSB as well as it will transfer to carry. तो carry में भी आ जाएगा. बस अब जब carry में आ गया तो क्या करना है? You need to check the carry. If carry is 1, then what you have to do? सेम कॉन्सेप्ट अभी काउंट दी अक्रेंस किया था ना, या काउंट दी ऑड नंबर है तो एक रजिस्टर ले लो, सेम C ही ले लो, उसका 0 0 कर दो. अगर ये 1 है, इफ कैरी इज 1, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू नीड टू स्टोर दैट. और अगर कैरी 0 आती है, जैसे सेकेंड नंबर में यहाँ कैरी 0 आएगी, तो क्या करना है? स्किप दैट, मीन्स गो टू नेक्स्ट लोकेशन. अंडरस्टूड माई पॉइंट? लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को कि लॉजिक क्या है इसमें? कि जो भी डेटा है पहले ब्लॉक को पॉइंट करो HL से, ठीक है, देन ट्रांसफर दिस कंटेंट इनटू एक्यूमुलेटर, फिर एक्यूमुलेटर कंटेंट को रोटेट करना है किससे? RRC से. तो जब हम RRC रोटेट राइट करेंगे तो जो LSB बिट है वो कहाँ जाएगी? दैट विल ट्रांसफर टू MSB as well as to carry. ठीक है, we will check carry. Carry अगर 1 है तो what we have to do? We will increment C को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे कि हाँ ऑड नंबर काउंट हो गया. और अगर कैरी 0 है तो क्या करेंगे? फिर से इधर आ जाएंगे, सेकेंड नंबर को एक्यूमुलेटर में लाएंगे, RRC करेंगे, फिर रोटेट करके कैरी चेक करेंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका भी. अभी देखो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ किए हैं. सबसे पहले तो सेम LXI, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? मेरे फर्स्ट नंबर को. देन MVIB05, ये मेरा काउंटर है कि मुझे 5 नंबर्स पे रिपीटेशन चाहिए सेम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ C? C का क्या मतलब है? इट इज़ स्टोरिंग द फाइनल काउंट कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर. तो स्टार्टिंग में इट इज़ 0. तो अभी आप बता सकते हो इसमें कितने ऑड नंबर हैं? ये ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा और ये ऑड नंबर होगा. तो मतलब फाइनल रिजल्ट जो है वो C में आ जाएगा 0 3. इस टाइम पे ये कंडीशंस में चेंज आएगा. एंड वेयर इज योर फाइनल रिजल्ट? दिस फाइनल रिजल्ट यू हैव टू ट्रांसफर एट लोकेशन C045. यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट स्टोर करोगे बाद में. दैट इज द एम ऑफ योर प्रोग्राम. तो काउंटर का मीनिंग समझा. देन C का रजिस्टर का मीनिंग, इट इज़ यूज टू स्टोर योर, it will keep the track of how many odd numbers are there and this will store your final result, final count. Then अब इस नंबर को RRC करने के लिए फर्स्ट कहाँ लाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर में, राइट. तो एक्यूमुलेटर में लाने के लिए सिंस इट इज पॉइंटेड बाय HL, तो वी कैन यूज मूव A, M. ओके, और मूव A, M यहाँ क्यों नहीं किया इसके बाद? क्योंकि हमें लूप में रखना है इसको, तो इसलिए हमने इसे नीचे लिया. ये पार्ट लूप में नहीं जाने, इसलिए इसको ऊपर कर दिया सबको. जो लूप में नहीं जाने वो आप पहले इनिशियलाइज कर दो. अब ये एक्यूमुलेटर में चला गया. ओके, फिर आपने इस पर क्या किया? इसको रोटेट किया RRC. दैट इज आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट यू आर चेकिंग? यू आर चेकिंग कैरी फ्लैग. तो कैरी फ्लैग के लिए दो ऑप्शन आएंगी, JC आएगा या JNC आएगा. तो विच विल यू विल यूज? हम यूज करेंगे JNC कि अगर कैरी नहीं है तो भाई नेक्स्ट पे चले जाओ, और अगर कैरी है तो C को इंक्रीमेंट कर दो. ये कॉन्सेप्ट लेके आपको सब प्रोग्राम्स में चलना है. तो JNC लिया, भाई कैरी नहीं है, कैरी नहीं है तो मतलब इवन नंबर है, तो नेक्स्ट पे जाओ. दैट मीनिंग नॉट टू काउंट, इंक्रीमेंट. ओके, एंड डिक्रीमेंट द काउंटर. इफ काउंटर इज नॉट 0, गो अप. सेम आपका काउंट या अक्रेंस वाला है, बस अक्रेंस की जगह आप क्या कर रहे हो? हर एक नंबर को एक्यूमुलेटर में ला रहे हो और उसको रोटेट कर रहे हो. दैट लॉजिक इज यू आर डूइंग टू गेट द ऑड नंबर. और अगर ये कैरी और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ दिस विल बिकम फॉल्स, तो ये सीधा चलेगा सिक्वेंशियली डाउन साइड. तो इट विल इंक्रीमेंट द काउंटर.
Go to next location, decrement the counter. If counter is not 0, again go up. Clear? So this program is very important. odd number. उसके बाद आप क्या करोगे? जब फाइनल हो गए, काउंटर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, काउंटर जो है वो 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद यू विल बी आउट ऑफ द लूप से आप बाहर हो जाओगे। तो क्या करना है? Simply you have to store the result. Where is your result? Result is in C. So you just transfer this to M. तो C M मतलब C045। ठीक है, INX ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, तो आउटपुट के लिए फिर से यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूप होने के पहले ही वो इंक्रीमेंट हो जाता है। एंड देन यू स्टॉप योर प्रोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस माई 3 numbers are odd numbers. So this is my result. Okay, so can anybody tell about how to do for even numbers? What should be the change? Can anybody JC tell? instead of GNC. Instead of? JC will be there. Yeah, very good. So instead of JNC, you just retake JC. ओके, तो JC ले लेंगे तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ ऑड इट विल काउंट इवन, कि अगर कैरी है मतलब ऑड है तो जंप कर जाओ, और अगर कैरी नहीं है मतलब इवन है तो यू जस्ट काउंट। अंडरस्टूड? तो इवन नंबर के लिए भी ये प्रोग्राम आता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल कम फॉर ऑड, इट विल कम फॉर इवन नंबर ऑल्सो। ओके, अच्छा, अभी वैसे तो बोर्ड में कभी आता नहीं कि दोनों फाइंड आउट करो, ऑड भी और इवन भी। अगर दोनों फाइंड आउट करना है, ये जर्नल का प्रोग्राम है आपका। इफ यू वांट टू फाइंड आउट बोथ द थिंग्स, भाई 0 एक में एक इवन भी बताता है और ऑड भी बताना है, तब क्या करेंगे? थोड़े से इंस्ट्रक्शंस और बढ़ जाएंगे, है ना? कि जैसे जेएनसी जब डाउन गए, यहाँ पर इंक्रीमेंट करने से पहले हम एक और रजिस्टर लेके उसका इवन का काउंट भी तो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड ना? और उसके बाद यहाँ पे हम अनकंडीशनल जंप भी लगाएंगे, एक अनकंडीशनल जंप भी होगा। आई शो यू दैट प्रोग्राम ऑल्सो, कि अगर एक ही प्रोग्राम में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट भी फाइंड आउट आप कर सकते हो, और इसमें भी आप जैसे ये पढ़ो, अभी प्रोग्राम रीड करो। A block of data is stored in C040 and a block length is stored at B. Write to find the total number of odd and even numbers from the given block and store it at the end of the block. तो C045, अब दो लोकेशन आपको लेने पड़ेंगे, C045 and C046 to store your odd and even numbers, राइट? तो अभी आप देखो, इसमें दोनों फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है? एक तो आपको दो रजिस्टर इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, तो हेयर वी हैव टेकन टू रजिस्टर डी एंड ई, ठीक है, टू स्टोर ऑड एंड इवन नंबर। बी हमने ले लिया काउंटर, लॉजिक सेम ही रहेगा, फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करो, ओके, देन उसको रोटेट करो। रोटेट करने के बाद नाउ यू सी जेसी लिया है, जंप इफ कैरी, मतलब अगर कैरी है तो क्या करना है? जंप करना है। मतलब तो आप कहाँ चले गए? ऑड के लिए चले गए ना, तो ऑड में आपने क्या किया? INRD किया, तो डी आपका क्या स्टोर कर रहा है? यू कैन टेक एनी रजिस्टर, तो इट इज स्टोरिंग योर ऑड नंबर काउंट, ओके। एंड देन सेम INX है, डिक्रीमेंट C, जंप इफ नॉट 0 गो अप, बाकी तो प्रोसीजर सेम है। आर यू गेटिंग दिस? बाकी प्रोसीजर क्या है? आई एम क्लियरिंग अगेन, चेंज हो गया। ठीक है, तो जंप इफ कैरी क्या लिया, तो इसका मतलब अगर कैरी है तो जंप कर जाओ, मतलब ऑड है तो ऑड हमने यहाँ स्टोर कर दिया, और उसके बाद जंप इफ नॉट 0, डिक्रीमेंट C, जंप इफ नॉट 0 एंड अप पे वापस आ गए, हम सेकेंड लोकेशन पे आ गए। अंडरस्टूड? और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
तो इसका मतलब नंबर इवन है, तो आपको क्या करना है, डी जो है वो ऑड स्टोर कर रहा था, ऑड नंबर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यू विल इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ ई, इट विल स्टोर योर इवन नंबर, राइट। अब इवन नंबर स्टोर करने के बाद तो आप सीधा नहीं जा सकते ना नीचे, क्योंकि अगर आप सीधा गए, सी अगर आपने ये कंडीशन, यहाँ पे यही एक समझने वाली चीज है कि हेयर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो आप इधर आ गए और आपने फिर सेम सीक्वेंस फॉलो कर दिया आफ्टर, इफ यू आर गेटिंग ऑड नंबर। बट अगर इवन नंबर है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यू आर हियर INRE। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लूंगी तो INRE के बाद फिर से इंस्ट्रक्शन INRD आ जाएगी, मतलब वो ऑड में भी काउंट हो जाएगा, तो दैट वी विल नॉट डू। तो हियर वी हैव टेकन अनकंडीशनल जंप, here what we have taken, unconditional jump we have taken, understood। तो unconditional jump से क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगी, कंडीशन फॉल्स हुई, INRE हुआ, तो आई विल जंप, तो मुझे इसको स्किप करना है तो इसको स्किप करने के लिए आई विल मूव टू दिस, सो दैट आई कैन गो टू नेक्स्ट लोकेशन। बाकी तो सेम सीक्वेंस है। आर यू गेटिंग दिस? तो जब आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है तो यू नीड टू पुट अनकंडीशनल जंप। तो दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ JNC ऑल्सो। तो उसमें क्या होगा, जब आप नीचे जाओगे तो आप इवन काउंट कर रहे हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप ऑड काउंट कर रहे हो, तो इट विल नॉट चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रोग्राम। Both you can use JC or JNC, but accordingly you need to store result according to the requirement of your program. But since here nothing is given कि आपको डी में ऑड स्टोर करना है, ई में इवन स्टोर करना है, या कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में पहले ऑड स्टोर करना है फिर इवन स्टोर करना है, नथिंग इज गिवन। इफ इट इज गिवन देन यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको कौन से लोकेशन में क्या स्टोर करना है, बट लॉजिक विल नॉट चेंज। यू कैन यूज इट JC एज वेल एज JNC ऑल्सो फॉर दिस। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, जब दोनों नंबर्स आपको मिल गए, काउंटर 0 हो गया, तब आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टोर फाइनल रिजल्ट। ऑलरेडी एक बार INX तो हो चुका है, तो यू जस्ट ट्रांसफर ऑड नंबर फर्स्ट इनटू मेमोरी, मतलब C045 पे क्या स्टोर कर रहे हो, डी में ऑड थे ना, तो ऑड नंबर स्टोर हो गया यहाँ पर, ठीक है। and now you have to increment again, तो it will point to next location C046। तो यहाँ पर आपको क्या स्टोर करना है, कंटेंट ऑफ ई, which will he was what he was doing, he was keeping the track of even number, तो यहाँ पे even number store हो गया, and then stop your program। Understood this concept? So this is the concept of odd and even number। समझ आ रहा है ये प्रोग्राम? तो सेम ऑड इवन दोनों चीज़ें आप एक ब्लॉक में फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अनकंडीशनल जंप आपको यूज़ करना पड़ता है कि अगर ट्रू है तो आप डायरेक्ट जंप कर गए, बट जब फॉल्स हुआ तो फिर वो ट्रू के पार्ट में भी तो आता है, तो ये काउंट हो जाएगा ना फिर से, तो वो काउंट नहीं करना है कि जब वो फॉल्स होगा तो हम यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, हमको इसे स्किप करना है क्योंकि ये ट्रू का पार्ट था। क्लियर? और कॉमन चीज़ें दोनों ट्रू फॉल्स में ये थी, ट्रू फॉल्स दोनों के लिए कॉमन चीज़ें हैं, नेक्स्ट लोकेशन पे जाना और काउंटर को चेक करना, बट इंक्रीमेंट डी जो है वो ट्रू पार्ट का पार्ट है, तो हमें वो भी स्किप करना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इफ़ यू आर एबल टू डू दिस देन इट विल बी मोर क्लियर। डू इट, राइट करो, बार बार इस प्रोग्राम्स को लिखो, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कि अच्छा दिस इंस्ट्रक्शन इज डूइंग दिस वर्क, दिस इंस्ट्रक्शन इज डूइंग दिस वर्क, if I'm using this instruction then this part will, or this part of the program will complete। इस तरह से आपको सोच के इंस्ट्रक्शन के दिस इंस्ट्रक्शन आई नीड टू यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस।
तो उसके लिए आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अंडरस्टूड? क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? नो डाउट? ओके।